Welcome aspirants, welcome to Shriram IAS YT channel for this one PYQ day series where we discuss and analyze one previous year question of mains UPSC Civil Services examination. Today is the day of disaster management and that is why I am here to discuss this PYQ which appeared on 2019 mains GS paper 3. We will start with our discussion, but I'll talk about first the one-to-one mentorship that the Shriram IAS is offering. It's completely free of cost. It is available on the description of the video. This will be a very important and valuable contribution in your UPSC Civil Services examination preparation, because a dedicated mentor who carries your best interest in his heart and mind can do wonders. He can offer you personalized advice. He can assess your individual strength, your weaknesses. It's a great thing to have somebody who knows things, who have transferred the path anyway, is there to help you. So definitely give it a try. जो हमारा सवाल है, जो क्वेश्चन है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, वो ये है: डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस इज द फर्स्ट स्टेप इन एनी डिजास्टर मैनेजमेंट process. Explain how hazard zonation mapping will help disaster mitigation in the case of landslides. 250 words, 15 marker. The first thumb rule for mains answer writing is read the question carefully. They are asking you to explain, the real question is explain how hazard zonation mapping will help in disaster mitigation in case of landslides. पहला उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो डेफिनेटिव स्टेटमेंट है कि डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस इज द फर्स्ट स्टेप, एंड हाउ दिस इज कनेक्टेड टू द सेकंड पार्ट, हजार्ड जोनेशन मैपिंग, because it is part of the disaster preparedness. So you will start with explaining with a brief statement कि disaster preparedness क्या होता है. You can start directly to your answer as well. You can simply put forward your explanation कि हाँ भाई, disaster preparedness which is nothing but the preparation to prevent, mitigate, recover efficiently, resiliently from the disaster. उसको हम बोलते हैं disaster preparedness. इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे, ह्यूमन रिसोर्स लेवल पे, पॉलिसी लेवल पे ये काम किए जाते हैं ताकि वी आर प्रिपेयर्ड से प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी होती है, बिकॉज you cannot eliminate disasters. They will come definitely because most of them are natural disasters. So वो आएंगे, हमें उन्हें उसके लिए प्रिपेयर्डनेस रखनी, जो कि एक प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी. यहां पे हमें ये वर्ड लिखने हैं. प्रोएक्टिव है, प्रिवेंटिव मेजर है, रिकवरी के लिए है. सारे जो कोर वर्ड्स अभी मैंने यूज किए वो यहां पे लिख देना. फिर आगे हम शुरू करेंगे अपना आंसर लिखना हजार्ड जोनेशन मैपिंग से. अभी हमने बेस बना दिया, इंट्रोडक्शन दे दिया. नाउ द एग्जामिनर्स नोस व्हेन यू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन यू कैन लिंक द टू. तो हजार्ड जोनेशन मैपिंग की बात वो कर रहे हैं. लैंडस्लाइड क्या होती है? लैंडस्लाइड इज नथिंग बट that a situation where boulders, rock material, debris come from high altitude to lower altitude, and the relief feature is there. Slope के थ्रू वो नीचे आता है under the influence of gravity. उसको हम बोलते हैं landslide. Most related to tectonic activities, mostly confined to the fragile area of Indian Himalayan region एंड द वेस्टर्न घाट. इंडिया में सिर्फ दो ऐसे एरियाज हैं जहां लैंडस्लाइड्स के जो प्रिविलेंस है वो ज्यादा है, इंडियन हिमालयन रीजन IHR का और वेस्टर्न घाट का. तो इन दोनों एरियाज में हजार्ड जोनेशन मैपिंग की बात हो रही है. हजार्ड, इट्स वेरी सिंपल थिंग. जोनेशन मैपिंग, जोन बताना कि किन एरियाज में ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, ससेप्टिबिलिटी है एरियाज में, किन एरियाज में, इन पैचेस में, वेस्टर्न घाट और इंडियन हिमालयन रीजन में जहां ज्यादा संभावनाएं हैं लैंडस्लाइड के आने की. उससे हम बोलते हैं हजार्ड जोनेशन मैपिंग. कैसे करोगे मैपिंग? प्रैक्टिकली सोचो, जस्ट थिंक प्रैक्टिकली. You will do this by obviously looking into certain factors like vegetation कितना है उस एरिया में, सॉइल टाइप क्या है, ह्यूमन एक्टिविटी का लेवल कितना है, कितने डैम्स बने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं, कितना रेनफॉल है, अंडरलाइंग जो रॉक स्ट्रक्चर है उसकी क्या सिचुएशन है,
जो टेक्टोटॉनिक एक्टिविटी है वो वहां पे है या नहीं है, या है भी तो उसकी क्या सेवेरिटी है। ये सारे फैक्टर्स यू विल लुक इनटू एंड देन डिसाइड कि अच्छा ये एरिया ज्यादा ससेप्टेबल है टू लैंडस्लाइड्स, ज्यादा संभावनाएं हैं, ज्यादा प्रोबेबिलिटी इन एरियाज में लैंडस्लाइड्स के आने की। ये जो फैक्टर हैं इन्हें हम देखते हैं जब हम जोनिंग करने जाते हैं। सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, और बहुत ही सिंपली इसको लिखना है। इफ यू हैव क्लैरिटी इन योर हेड, यू कैन pretty much write a very good answer in mains। क्लैरिटी होनी जरूरी है। लेकिन अब वो बोल रहे हैं, ये हमने डिस्क्राइब कर दिया, अब वो कह रहे हैं कि एक्सप्लेन करो कि कैसे ये मिटिगेशन में मदद करेगा। मिटिगेशन क्या होता है? मिटिगेशन इज व्हेन यू वांट टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर, डेथ डिस्ट्रक्शन शुड बी लेस, और जो बिल्डिंग बैक बेटर वाला जो कंसेप्ट है रिजिलियंस का, वो यहाँ पे होता है। बाद में अगला स्टेप उसके होता है। तो मिटिगेट करना मतलब जो सेवेरिटी है डिजास्टर की उसको रिड्यूस करना। कैसे होगा? जो जोनिंग के थ्रू। जोनिंग के थ्रू भाई तुम्हें अर्ली वार्निंग मिल जाएगी। द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट बिल्डर्स पीपल विल नो कि भाई these areas are very susceptible to landslides, so one should always tread with a lot of caution in these areas whenever you want to do anything। अर्ली वार्निंग मिलेगी हमें। दूसरा, भाई लैंड यूज प्लानिंग में मदद करेगा ये हमारे। वो जो एरियाज हैं जहां पे ज्यादा सेवेरिटी है लैंडस्लाइड की, वहां पे कैसे अर्बनाइजेशन करना है, एक्सपेंशन करना है इंफ्रास्ट्रक्चर का, हाईवे बनाना है, रेलवे बनाना है, माइनिंग करनी है, विच एवर यू वॉन्ट टू डू थिंग एक्टिविटी, यू विल अकॉर्डिंगली डू। तीसरा यहाँ पे जो मदद हमें मिलेगी वो होगी कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस की। एट द हार्ट ऑफ मॉडर्न डे डिजास्टर मैनेजमेंट इज कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस। if the community is prepared mentally, psychologically, physically, financially, then it is a great asset to in reducing the damage and death and destruction which comes out of disasters। तो बहुत ही बड़ा यहाँ पे फायदा इसमें होता है हमें प्रिपेयर्डनेस में। देन हम बात कर रहे हैं डोनेशन मैपिंग की, कैसे वो मिटिगेट करेगा अपार्ट फ्रॉम दीज थ्री। हाउ वुड इट डू? अर्ली वार्निंग तो ठीक था, मिल गया अर्ली वार्निंग हमें। लैंड यूज प्लानिंग हो गया, कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस हो गया। अब ये बात कर रहे हैं लैंडस्लाइड्स की, तो भाई इसमें हम कुछ सोल्यूशन भी तो देख सकते हैं लैंडस्लाइड को लेके। अगर हमें मालूम पड़ गया कि इन एरियाज में ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, तो भाई इंजीनियरिंग जो सोल्यूशंस होंगे, पर्टिकुलरली जो टेक्निकल साइंटिफिक सोल्यूशंस होंगे, लाइक स्लोप को रिट्रोफिट करना, उसमें स्टेबलाइजेशन के लिए टेक्निकल टेक्सटाइल्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, ये सारे काम करना। वहाँ ड्रेनेज की जो फैसिलिटीज हैं, जो ड्रेनेज जरूरी है क्योंकि अगर पानी बिल्डअप होता रहा तो लैंडस्लाइड्स होती हैं, उसको कैसे एड्रेस करना, ये सारे कुछ किए जा सकते हैं सोल्यूशंस के माध्यम से, इंजीनियरिंग सोल्यूशंस के माध्यम से लैंडस्लाइड्स के अंदर। स्टेबलाइजेशन जो मेजर्स होते हैं बहुत ही इफेक्टिव होते हैं इन डीलिंग विद लैंडस्लाइड्स। तो इस तरह से प्रिपेयर्डनेस हम कर रहे हैं। दीज आर व्हाट? प्रिपेटरी मेजर्स। प्रिपरेशन यहां पे किया जा रहा है। कुछ भी एरिया जैसे जहां पे और भी रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, रेक्टिफिकेशन पॉसिबल है वो किए जाने चाहिए। तो प्राइमरली ये फैक्टर बनते हैं जिनके माध्यम से हजार्ड डोनेशन मैपिंग जो है वो मिटिगेट करती है लैंडस्लाइड जैसे डिजास्टर को। ये एक प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी है। वी डोंट वांट टू वेट टिल द डिजास्टर स्ट्रक। तो जो सेंडाई फ्रेमवर्क है हमारा डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का, उसके तहत ये आएगा। सेंडाई फ्रेमवर्क, डीआरआर इसको हम बोलते हैं, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन जो फ्रेमवर्क है, सेंडाई इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स हैं ये। इसके रेमिट में ये पर्टिकुलर अप्रोच आएगी। वी वांट टू बी seen proactively here, that we are acting in a way to reduce or mitigate the impact of landslides। ये एग्जैक्टली हम यहाँ पे अचीव करना चाहते हैं। इट इज इन लाइन विद द सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड ए हेल्पफुल एडिशन टू ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ द रिकरेंट लैंडस्लाइड इवेंट्स, जिससे जान माल की जो है सुरक्षा की जा सकती है। दैट इज हाउ यू राइट ए मेंस आंसर। So this question was very interesting, very important, very relevant. Even now it is very relevant because landslides are a continuous menace. In the situation where excessive rainfall is happening in these days in the Himalayan region, that is also
ए सीरियस इशू, तो इसे एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. You can join me on my Telegram channel as well. Thank you for giving me your time.